next topic is human respiratory system. Write down first heading, respiration. Respiration. हाँ बच्चों, what is respiration? Anyone? Just raise your hand. What is respiration? What is respiration? Anyone? गलती तो होगा, क्या होगा? ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनर्जी नहीं, हाँ बोलो. हाँ, द breakdown of food, the oxidization of food to get energy is called respiration. Respiration is a catabolic process or anabolic? What do you mean by metabolism? Metabolism क्या होता है? हाँ बोलो. What is metabolism? अच्छा, what is catabolism? What is anabolism? Sit down. Anyone? What is catabolism? What is anabolism? Last bench. What is catabolism? Don't know. What is anabolism? Nived? Aditya? Soni ji? In human being, in any organisms, all the chemical reactions which take place inside the body, they are known as metabolic reactions. All the chemical process which take place in our body are known as metabolic reactions या metabolism. अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है, देन इट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन. और अगर सिंपल सब्सटेंस कंबाइंड होकर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म. देन इट इज कॉल्ड, तो एनाबॉलिज्म मीन्स फॉर्मेशन, कैटाबॉलिज्म मीन्स, लिखो ये हेडिंग कॉपी में सबसे टॉप पर लिखो, अलग से लिखो मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म. in this write down all the chemical process which take place inside the body, all the chemical process which take place inside the body, all the chemical process which take place inside the body are combinedly known as metabolism. Are combinedly known as metabolism. Write down next point. Metabolism is classified into two categories. कॉपी की टॉप पर ही लिखना, चाहे नेक्स्ट पेज पर लिखो. मेटाबॉलिज्म इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. मेटाबॉलिज्म इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज कैटाबॉलिज्म, वन इज कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में लिखो, in catabolism write down the breakdown of complex food into simple one. The breakdown of complex food मत लिखो, complex substance लिखो या chemical लिखो.
The breakdown of complex substance or chemical into simple one is called catabolism. Into simple form is called catabolism. The breakdown of complex substance or chemical into simple one is called catabolism. Next point लिखो. The formation of complex compound by simple one. The formation of complex compound by simple one. The formation of complex compound by simple one is called anabolism. रेस्पिरेशन होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस, ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है और फोटोसिंथेसिस होती है एनाबॉलिक प्रोसेस. क्या होती है? तो जहां पर ब्रेकडाउन होता है दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, जहां पर फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड. क्लियर ये पॉइंट? नाउ राइट डाउन हेडिंग रेस्पिरेशन. इसमें लिखो रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज अ catabolic process. Respiration is defined as a catabolic process. Respiration is defined as a catabolic process in which a large amount of energy is developed. A large amount of energy is developed by the breakdown of glucose. By the breakdown of glucose. अब देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहां पर एक पॉइंट और सुनो. अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या कहलाता है? जब फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. दैट इज कॉल्ड. हम लोगों की बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. जो स्मॉल बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई होते हैं, दे परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एरोबिक. रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक. एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? बैक्टीरिया एंड फंगाई. क्लियर ये पॉइंट? नाउ जब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है a pair of nostrils. A pair of nostrils. Nostrils open into a cavity that is known as nasal cavity. That is known as nasal cavity. Continue as a nasopharynx, या आप pharynx भी लिखोगे तो चलेगा. Pharynx is the common pathway for food and air. तो nasal cavity open into nasopharynx या pharynx. Pharynx आगे आकर एक स्ट्रक्चर में ओपन होता है
ये स्ट्रक्चर कहलाता है लैरिंग्स। क्या कहलाता है? ठीक है। दिस देखो समझना इस बात को, ये एक ट्यूब जा रही है, ठीक है, ये ट्यूब कंटिन्यू कर रही है, उस ट्यूब के सराउंडिंग में चारों तरफ एक कार्टिलेज का बॉक्स प्रेजेंट है, उस बॉक्स को हम क्या नाम देते हैं? लैरिंग्स। क्लियर ये पॉइंट? नाउ this one, now this tube like structure is known as trachea. This is known as okay, and trachea open into या trachea divide into bronchi. Trachea divide into and bronchi finally open into balloon shaped structure which are known as lungs. Inside the lungs, bronchi further divided. And finally they form a sac-like structure which is called alveoli. Which is called lungs are covered by a protective layer. This protective layer is known as pleura. क्या कहलाती है? These openings are known as nostrils. This one is known as nasal cavity open into nasopharynx, continue as a larynx and then trachea. Trachea divide into right and left and bronchi open into lungs. Lungs are covered by a protective covering that is known as pleura. So this is about the respiratory system. Clear ये point? लिखो इसमें human respiratory system. Human respiratory system. In this write down, it starts with a pair of openings. It starts with a pair of openings called nostril. It starts with a pair of openings called nostrils, which further open into nasal cavity, which further open into nasal cavity. Write down next point. Heading लिखो nasal cavity. Nasal cavity. In this write down, this cavity is lined by देखो बच्चों, यहां पर हेयर सेल्स होती हैं और म्यूकस सेल्स होती हैं. क्या होती हैं? हेयर सेल्स एंड जैसे ही एयर नॉस्ट्रिल से होते हुए नेजल कैविटी में एंटर करती है, ये जो हेयर सेल्स और म्यूकस सेल्स हैं, दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी एंट्री यहीं पर रुक जाती है बाय हेयर सेल्स एज वेल एज म्यूकस सेल्स. क्लियर ये पॉइंट? इसके बाद नेजल कैविटी में एक और लाइनिंग होती है
दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। क्या कहलाती है? ये लाइनिंग होती है स्मेल को ले जाने के लिए। जो भी हम स्मेल का सेंसेशन लेते हैं वो किस एपिथेलियम को टच करता है और फिर वहीं से ब्रेन में जाता है। क्लियर ये पॉइंट? तो नेजल कैविटी में अभी तक हमने दो फंक्शंस पढ़े। स्टार्टिंग में है हेयर सेल्स एंड म्यूकस सेल्स विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल। फिर कौन सी एपिथेलियम है? ऑल्फैक्टरी, विच कैरी द सेंसेशन ऑफ स्मेल टुवर्ड्स द ब्रेन, टुवर्ड्स द। थर्ड पॉइंट सुनो, इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर एंटर कराते हो, ठीक है, अगर नेजल कैविटी ऐसी होती तो ये डायरेक्ट एंटर कर जाता, यस और नो? ऐसी नहीं होती नेजल कैविटी। देखो कैसे होती है। ये नेजल कैविटी है, ये नॉस्ट्रिल्स हैं, यहां पर ऐसे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? इसका बेनिफिट क्या होता है? देखो, अगर एयर यहां से एंटर करती तो वो डायरेक्ट चली जाती यहां पर, यस और नो? अब एयर यहां से एंटर करती है तो वो ऐसे होकर जाती है। समझ में आई मेरी बात? इस भूल भुलैया का बेनिफिट क्या है? डस्ट पार्टिकल तो बच्चा यहीं रुक गए, आगे डस्ट पार्टिकल को तो हमने यहीं रोक लिया। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस भूल भुलैया इनसाइड द नेजल कैविटी? सोचो। क्या? नो नो, लिमिट से क्या मतलब है? एयर उतनी ही जाएगी जितनी जानी चाहिए। लंग्स बैलून है, ज्यादा एयर भरोगे तो। क्लियर ये पॉइंट? हाँ, क्या क्या रीजन होता है? एनीवन? हम बस पढ़ते ही तो नहीं हो, सब कुछ करते हैं। देखो सुनो ध्यान से, जैसे हम विंटर सीजन की बात करें, किस सीजन की? बाहर का टेम्परेचर, अरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना होता है? विंटर सीजन में एटमॉस्फेयर का बाहर का टेम्परेचर कितना होता है? हाँ, 5 to, चलो 10 मान लिया। बेटा हम झांसी में है, कश्मीर में नहीं है। चलो 5 to 10 मान लिया। वैसे 15 to 20 होता है। कितना होता है? कितना होता है? चलो हम कश्मीर पहुंच भी गए, मान लिया। अरे सुनो तो, पहले कश्मीर तो पहुंच जाओ। हमने -5 कर लिया, ठीक है। अब चाइना नहीं जाना है, कश्मीर में ही रहना है, ठीक है। सुनना, अगर अच्छा हम कश्मीर पहुंच गए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा वहां पर? अरे बोलो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता कितना है पहले तो ये बताओ? 37। हम कश्मीर पहुंच गए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा? 37 रहेगा, यस और नो? हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री और बाहर का टेम्परेचर है -5। अगर इतनी ठंडी एयर हमारे नेजल कैविटी से अंदर जाएगी तो क्या ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी? यस और नो? समझ में आ रही है मेरी बात? या अभी हम बाहर निकले, जो लू लपट चल रही है वो डायरेक्ट एयर 45 डिग्री की हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे तो क्या उससे हमारी बॉडी को हार्म नहीं होगा? होगा। तो जब एयर एंटर करती है इतने टेम्परेचर की तो वो इतना घूम फिर के इसलिए जाती है कि जब तक वो अंदर जाए, पहुंचे तब तक उसका टेम्परेचर 37। समझ में आई मेरी बात? क्लियर ये पॉइंट? अंडरस्टूड? हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, गले में ठंडा लगता है ना, स्टमक में नहीं लगता,
स्टमक में वो भी फील होता है, बस लगता नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर ये जो नेजल कैविटी है उसमें ऐसे प्रोजेक्शंस नहीं होते तो बाहर की एयर डायरेक्ट अंदर एंटर करती, टेम्परेचर सेम नहीं होता, बॉडी में प्रॉब्लम होती। आप सोचो ना, जब फीवर में हमारा टेम्परेचर 37 से 40 पहुंचता है, 40 तो पहुंचते ही नहीं है, 38 39 भी पहुंचता है, तो बॉडी हीट करने लगती है, बॉडी पूरी वीक हो चुकी होती है। और अभी बाहर का टेम्परेचर कितना है? 45। जब 45 डिग्री टेम्परेचर की एयर अंदर एंटर करेगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 45 हो जाए, ठीक है ना, तो जो नेजल कैविटी है उसमें प्रोजेक्शंस होते हैं। आप यहां से कोई भी प्रोजेक्ट डालोगे, ऑब्जेक्ट डालोगे, वो यही रुक जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, जबकि उसकी डेप्थ इतनी ज्यादा होती है। समझ में आई मेरी बात? तो इन प्रोजेक्शंस का बेनिफिट क्या है? दे मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी टेम्परेचर। क्लियर ये पॉइंट? यही तो रीजन है कि विंटर में जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो धुआं निकलता है। क्यों निकलता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? जो वाटर वेपर निकल रही है बाहर आई, जैसे ही टेम्परेचर कितना हो गया? 10 15, तो वो कंडेंस हो जाएगी, यस और नो? तो वो हमें कंडेंस एयर के फॉर्म में दिखाई देती है। और समर सीजन में बाहर का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, इसलिए वो वाटर वेपर हमें दिखाई नहीं देती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लंग्स वाटर वेपर रिलीज नहीं करते। हमारे लंग्स थ्रू आउट द ईयर CO2 के साथ क्या रिलीज करते हैं? वाटर वेपर्स, जो हमें विंटर सीजन में दिखाई देती है, समर में दिखाई। क्लियर ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया? लिखो इसमें नेजल कैविटी, इसमें लिखो इट इज लाइन्ड बाय हेयर सेल्स एंड म्यूकस सेल्स। इट इज लाइन्ड बाय हेयर सेल्स एंड म्यूकस सेल्स which prevent entry of dust particles, which prevent entry of dust particles. सेकेंड पॉइंट लिखो, nasal cavity is lined by nasal cavity is lined by olfactory epithelium. Nasal cavity is lined by olfactory epithelium. EPITHELIUM, epithelium, which carry sensation of smell, which carry sensation of smell. Write down next point. Nasal cavity contain many projections. Nasal cavity contain many projections which help to maintain the temperature of outer air, up to our body temperature, up to our body temperature. Write down next point. Nasal cavity open into nasopharynx. Nasal cavity open into nasopharynx. Nasal cavity open into nasopharynx. देखो बच्चों, यही वो पार्ट है
नेजोफैरिंग्स, जहां पर ईयर से आने वाली ट्यूब ओपन होती है। ठीक है, इस ट्यूब का फंक्शन होता है बॉडी के आउटसाइड और बॉडी के इनसाइड प्रेशर को मेंटेन रखना। हमने लास्ट क्लास में बात की थी, जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो कुछ लोगों को ईयर में पेन होता है। उसका रीजन होता है कि ये जो ट्यूब है ये जनरली हमारे बॉडी के आउटसाइड और इनसाइड प्रेशर को मेंटेन रखती है, बट जब हाइट पर प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है तो फिर प्रेशर बैलेंस ना होने की वजह से हमारे ईयर में क्या होता है, पेन होता है। क्लियर ये पॉइंट। इस ट्यूब को, जो हमारा बॉडी का बैलेंस मेंटेन करती है, इस ट्यूब का नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। ये पॉइंट अलग से ऊपर लिख लो कॉपी के टॉप पर, कॉपी के टॉप पर लिखो यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब, EUSTACHIAN, यूस्टेशियन ट्यूब open into nasopharynx, eustachian tube open into nasopharynx, and its main function is to equalize, its main function is to equalize pressure, to equalize pressure on either side of body, equalize pressure on either side of body, मतलब बॉडी के दोनों तरफ, अंदर भी और बाहर। either side of body, EITHER, either side of body। क्लियर ये पॉइंट? हाँ, लॉन्ग टर्म पेन नहीं होगा। लॉन्ग टर्म पेन हुआ है दैट मीन्स उस ट्यूब में कहीं ना कहीं स्वेलिंग आ चुकी है, इन्फ्लामेशन हो चुका है या ब्लॉकेज हो चुका है। क्लियर ये पॉइंट? या फिर आप हमेशा के लिए फ्लाइट में हो। अंडरस्टूड? हाँ, नेजोफैरिंग्स। नेक्स्ट लिखो हेडिंग लैरिंग्स, लैरिंग्स। In this write down, larynx is commonly called voice box. Larynx is commonly called voice box, which contain sound producing organ, which contain sound producing organ called vocal cords, called vocal cords। सुनो ध्यान से, ये जो आपको कवर दिख रहा है फेरिंग्स के चारों तरफ, इस कवर को हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स एक्चुअली बना होता है कार्टिलेजेस का। किस चीज का बना होता है? हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम में दो चीजें होती हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो लैरिंग्स में टोटल 9 कार्टिलेजेस होते हैं। कितने होते हैं? ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स की ट्रैकिया में इस ओपनिंग को हम बोलते हैं क्या? द ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स इनटू ट्रैकिया इज नोन एज ग्लॉटिस। क्या कहलाती है? और इस ग्लॉटिस को कवर करने वाला ये कैप क्या कहलाता है?
एपिग्लॉटिस इज वन ऑफ द कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। किसका कार्टिलेज है? लैरिंग्स। किसका पार्ट है? तो लैरिंग्स कंसिस्ट ऑफ 9 cartilages. लैरिंग्स इज कॉमनली कॉल्ड वॉइस बॉक्स, और लैरिंग्स में जो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? अब दो इंपॉर्टेंट चीजें सुनो। जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं दे ओनली प्रोड्यूस साउंड, ठीक है? उस साउंड में सिर्फ विसिल साउंड होता है, जो हमारे एयर जो बाहर निकल रही है लंग से, सिर्फ वही साउंड होता है। उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है हमारी ओरल कैविटी, हमारे टीथ, हमारी टंग, हमारे चीक्स, हमारे लिप्स, हमारा पैलेट। अगर ये स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे तो हम प्रॉपर वर्ड्स प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाएंगे। समझ में आई मेरी बात? अब हम कोई पार्ट हटाकर तो चेक नहीं कर सकते, बट हम टंग पकड़कर चेक कर सकते हैं। अगर आप अपनी टंग को होल्ड करते हो तो आपके मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकलेगा। अंडरस्टूड? दैट मीन्स टंग, जैसे हम बात करते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जैसे जैसे वो बोलना स्टार्ट करता है, हम वहां तो चीजों को क्लियर नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अगर उनके टीथ नहीं हैं तो उनके कुछ वर्ड्स हमको समझ में नहीं आते। उसका रीजन है कि टीथ ना होने की वजह से वो वर्ड्स क्लियर नहीं निकलते। समझ में आई मेरी बात? तो जो वोकल कॉर्ड है वहां से सिर्फ एयर बाहर आती है, उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करने का काम हमारी ओरल कैविटी करती है। अंडरस्टूड? अब देखो, जैसे हम इस लैरिंग्स को ओपन करें, हम लैरिंग्स के अंदर पहुंच गए। लैरिंग्स में, ह्यूमन के लैरिंग्स में 2 पेयर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। हाउ मेनी पेयर? 1 पेयर ऊपर की तरफ होता है, 1 पेयर नीचे की तरफ होता है। ये जो अपर वोकल कॉर्ड होता है ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता। जो लोअर वोकल कॉर्ड होते हैं वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स इन ह्यूमन बीइंग लैरिंग्स कंटेन 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स, एक जो ऊपर है, एक जो, उसमें से कौन सा वाला फंक्शनल है? नीचे वाला। ऊपर वाला कुछ भी नहीं करता, इट्स अ नॉन फंक्शन। अंडरस्टूड? अब होने को तो हम ही क्यों हैं? हमारे ओरल कैविटी में टीथ क्यों है, विजडम टूथ क्यों है, जबकि उससे कोई काम नहीं है? हमने पढ़ा है ना, यस और नो? हमारे इंटेस्टाइन के पास अपेंडिक्स क्यों है? उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये एक टाइम पर जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे उनमें फंक्शनल था। समझ में आई मेरी बात? हम कुछ मूवीज देखते हैं ना, उस मूवीज में वो लोग कुछ अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, जो हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते। उन साउंड्स के पीछे यही रीजन है, या तो हम बन जाएं तो ये काम करना स्टार्ट करें, या तो हम जो है वही ठीक है। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, एक चीज और, लैरिंग्स की जो मसल्स होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइदर हाई पिच वॉइस और लो पिच वॉइस। फीमेल्स प्रोड्यूस हाई पिच वॉइस, मेल प्रोड्यूस लो पिच वॉइस। क्लियर ये पॉइंट? पिच बिलोंग्स टू फिजिक्स। अब पिच का मतलब समझना वहां पर क्या होता है, ठीक है? हाई पिच जो वॉइस होती है ना, वो बहुत श्रिल वॉइस होती है, बहुत तीखी वॉइस होती है। लो पिच वॉइस में हैवीनेस होती है। क्लियर ये पॉइंट? खुश मत हो, ठीक है? तो लैरिंग्स कंटेन 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स इज कॉमनली नोन एज वॉइस कॉर्ड। क्लियर ये पॉइंट? लिखो इसमें, इन लैरिंग्स 2 pair of vocal cords are present. In larynx, 2 pair of vocal cords are present
out of which only one pair is functional, out of which only one pair is functional. Write down next heading, trachea.